Hi guys, how are you all? Thank you for watching my channel. My name is Surbi and today I'm going to start with new series of Ncert. Okay, so guys, you might have seen many videos wherein many people are teaching the Ncrts, but they are teaching the complete chapters. So why I thought of this concept was as revision is very important in UPSC. So I thought of taking a series which would be based upon the revision of NCRT. So whenever you want to revise your NCRTs, you can just play these videos and you'll be able to revise all the important points in a particular chapter. So to start with, I'm going to start with Economics Class 9 NCRT, as Economics start from Class 9. So first I have taken up Economics, and today we are going to study Chapter 1 of NCRT. So guys, you might notice that my notes or my slides will be of very lesser points, because this is not explanation for the entire chapter. Of course, you will be able to learn the entire chapter from these slides, but I have tried to short it down so that the revision is completed as soon as possible. So as we see in the first chapter is presented in the form of story in the NCRT textbook. So one reading is enough. There is no need to read the story again and again, because it is given from the perspective of class 9 students. So all the concepts have been presented in the form of story. But now for UPSC, what we need to do is we need to just see the important points. Okay. So first point. We will start with the first point. So first point is, in this chapter we will learn how various resources combine to produce the desired goods and services. So what is this chapter all about is how different resources, okay, they all combine together to produce desired goods and services. Okay. So organization of production. So what organization of production has? It has four requirements. Okay, for producing any good or goods, you require four things. Okay, what are those four things? You require land, you require labor, you write physical capital. Physical capital as in you require tools, machines, build, or you require in building as an infrastructure you require. Okay, कोई भी चीज अगर आपको बनानी है तो आपको उसके लिए टूल्स की जरूरत होगी, टू मेक दैट थिंग मशीन की जरूरत होगी, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. Okay, कोई भी चीज you cannot go and start building something in an open ground. Okay, so you need some infrastructure, and all these three things, that is tools, machine, and infrastructure, what they are regarded as fixed capital. Okay, what they are regarded as fixed capital. इनको fixed capital क्यों बोला जाता है? Because you don't need to buy them daily. Okay, tools, machines और infrastructure ऐसी चीजें जिनमें आप एक इन्वेस्टमेंट कर दे तो we cannot sell for lifetime, but बहुत टाइम तक ये चलती है, इसलिए they are called as fixed capital. और इसके अलावा what do you need? Raw material and मनी इन हैंड. ओके, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, किसी चीज का कोई चीज बनानी है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस ऑफ बिस्किट्स, सो यू नीड रॉ मटेरियल. आपको उसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी. यू नीड शुगर, यू नीड फ्लावर, यू नीड मैनी थिंग्स. ओके, एसेंस जो भी है. सो आपको कोई भी अगर गुड्स आपको प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए यू नीड रॉ मटेरियल. Now, fourth capital to put together land and labor is the human capital. और सबसे इम्पोर्टेंट वाला कौन सा कैपिटल है? फोर्थ कैपिटल, क्योंकि ये सब चीजें करने के लिए what do you need? You need human capital, है ना? You need human capital because ह्यूमन बीइंग ही ऐसी चीज है जो इन सब चीजों के बारे में सोच सकते हैं और ये सब चीजें कंबाइन करके मैनेज करके एक प्रोडक्ट बना सकते हैं, फाइनल प्रोडक्ट जो फर्दर यू कैन सेल. ओके, सो ह्यूमन कैपिटल इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैपिटल. नाउ
factors of production. Now, what are the factors of production? Every production is organized by combining लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. सो यहाँ पे जो हमने देखे थे कि ये जो सारी सब चीजें हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो ये सारी चीजें कंबाइन करके वी कैन प्रोड्यूस अ गुड. ओके, सो इसलिए इनको बोला जाता है फैक्टर्स. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैंड इज फिक्स्ड. नाउ what is given in the textbook is एक स्टोरी फॉर्मेट में दिया है और उसमें फिर बताया है कि वो विलेज जो है पालमपुर, ये जो विलेज है, पालमपुर ये जो विलेज है इसके अंदर में क्या क्या कंसिडरेशंस है या क्या क्या कंडीशंस है. सो उसमें फिर फर्स्ट पॉइंट दिया है, द फर्स्ट पॉइंट गिवन ओवर हियर इज कि लैंड इज फिक्स्ड इन द पालमपुर विलेज, द लैंड इज फिक्स्ड. ओके, now what is further given is 75% of people are dependent on farming for their livelihood. Okay, so here what is provided is विलेज के बारे में हमको क्या फैक्टर्स दिए हैं कि 75% इन द विलेज आर फार्मिंग फॉर लाइवलीहुड. ओके, इसका मतलब है कि 75% पीपल का जो एम्प्लॉयमेंट है दैट कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर या फार्मिंग. ओके, land area under cultivation is fixed and no expansion since 1960. So land जो under cultivation है वो क्या है, fixed है ना. land under cultivation is fixed और जो cultivation के अंदर land है उसमें expansion नहीं आया है. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ जो land होती है विलेज के बाहर या in the village जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं होती या फिर गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ नहीं करने वाला होता है तो वो गवर्नमेंट को विलेज को दे देता है ताकि विलेज वो लैंड को फार्मिंग के लिए यूज कर सके. लेकिन यहाँ पर क्या बोला है कि 1960 से जो लैंड है पालमपुर विलेज की वो फिक्स्ड ही है, वो चेंज नहीं हुई है. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट ये था. फर्स्ट पॉइंट में हमको बताया है, दो कंडीशंस बताई है विलेज के बारे में कि 75% लोगों का लाइवलीहुड फार्मिंग से आता है और लैंड फिक्स्ड है ना. मतलब 75% लोगों का इनकम उससे आता है या एम्प्लॉयमेंट उससे है या लाइवलीहुड उससे आता है. इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लैंड अंडर कल्टीवेशन है ना. इसका ये मतलब है कि और सेकेंड पॉइंट से मतलब फर्स्ट पॉइंट से ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि शायद मे बी 75% लोग जब फार्मिंग कर रहे हैं तो बहुत सारी लैंड होनी चाहिए, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं. बोला है कि लैंड अंडर एक्सपेंशन इज फिक्स्ड. नाउ सेकेंड पॉइंट है, इज देयर एनी वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम सेम लैंड, है ना. अब लैंड तो फिक्स्ड है, लैंड तो चेंज नहीं हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि अर्निंग के सोर्सेज जो पालमपुर विलेज में है वो बहुत कम है ना, बहुत कम है अर्निंग के सोर्सेज. तो फिर सेकेंड पॉइंट में ऐसा बोला है कि ऐसा कोई तरीका है क्या, इज देयर एनी ऑप्शन दैट मोर एक लिमिटेड लैंड में ज्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं. फिर देन व्हाट इज सेड कि इसके बारे में बोला है कि मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन द मल्टीपल क्रॉपिंग, विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड. बट फॉर नाउ मल्टीपल क्रॉपिंग मींस एक ही लैंड पर अलग अलग सीजन में अलग अलग क्रॉप ग्रो करना, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग. ओके, नाउ खरीफ ड्यूरिंग रेनी सीजन, रबी ड्यूरिंग विंटर एंड पोटैटो कल्टीवेशन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. ऐसे तीन स्टेजेस में या तीन तरीके के क्रॉप हम ग्रो करके एक ही लैंड पर क्या कर सकते हैं, more we can grow more from same land. Okay, fine. I hope you have understood all the points in this slide. Now we are moving to the next slide. Now अब मल्टीपल क्रॉपिंग, सी हैव टोल्ड यू ना मल्टीपल क्रॉपिंग क्या डेफिनेशन दिया था यहाँ पर, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर. एक ईयर में एक पीस ऑफ लैंड पे मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना इज मल्टीपल क्रॉपिंग. नाउ अब इसमें एक ही लैंड पर इतना सारा क्रॉप ग्रो करना है, मतलब क्या, उसके लिए you need irrigation. So irrigation has played major role in growing 3 different crop a year. Okay, so what is the prerequisite for growing multiple crop in a year is
इरिगेशन अच्छा होना चाहिए. ओके, नाउ व्हाट इज द अदर वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड. अब एक मेथड तो हो गया मल्टीपल फार्मिंग का मेथड, मल्टीपल क्रॉपिंग का एक मेथड मिल गया हमको. तो व्हाट आर द अदर वेज ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, है ना, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के दूसरे मेथड्स कौन से हैं. सो नाउ तो टेक्स्ट बुक में नेक्स्ट वाज गिवन कि टिल 1960s तक क्या हुआ था, सीड्स यूज वर ट्रेडिशनल. ठीक है, अब ट्रेडिशनल सीड्स यूज करने की वजह से क्या होता था, वो लो यील्ड देते थे. लो यील्ड का मतलब प्रोडक्शन कम होता था उन सीड्स से. उसके लिए लेस इरिगेशन रिक्वायर्ड था, क्योंकि कौन से थे वो, ट्रेडिशनल सीड्स थे, है ना. काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर वाज यूज्ड एज फर्टिलाइजर. के फर्टिलाइजर में क्या था वो टाइम पर, काउ डंग एंड नेचुरल मैन्योर. ओके, सो इन सब फैक्टर्स की वजह से क्या था, प्रोडक्शन वाज मॉडरेट और लो. ओके, सो यहाँ पे कंडीशंस ये बोली है कि मतलब उन्होंने बताया है कि पहले क्या था, मतलब पहले क्या कंडीशन थी इंडिया में फार्मिंग की. सीड्स ट्रेडिशनल होने की वजह से यील्ड स्लो और ट्रेडिशनल सीड्स होने की वजह से इरिगेशन मतलब वाटर भी कम लगता था, है ना. और काउ डंग और नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइजर लगता था. लेकिन इस सब का रिजल्ट क्या था कि प्रोडक्शन लो या फिर मॉडरेट. और ये सभी चीज जो है, इरिगेशन है और काउ डंग और फर्टिलाइजर है, ये सब क्या था, ऑल दिस थिंग्स में रेडीली अवेलेबल होता है. मतलब फार्मर को कहीं जाना नहीं पड़ता था कुछ खरीदने, या ये सब चीजें थी that were naturally and readily available with the farmer. Now what next happened was green revolution, है ना. ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, हाई यील्ड वेराइटी ऑफ सीड्स है ना. what have happened because of green revolution, high yield variety of seeds है. high yield variety of seeds ने क्या किया, promised greater production. high yield variety of seeds की वजह से प्रोडक्शन बढ़ा, बट उसमें प्रॉब्लम क्या थी, needed plenty of water, मतलब इरिगेशन की जरूरत पड़ने लगी, है ना. एंड नीडेड केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ने लगी, एंड पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस पेस्ट सीजन. अब इसमें सब चीजें एक्स्ट्रा आ गई. लेस लो यील्ड का हाई यील्ड हो गया, उसके बाद में लेस इरिगेशन का मोर इरिगेशन हो गया, और यहाँ पे जो काउ डंग एंड मैन्योर इजीली अवेलेबल था, वो केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से दे आर नॉट इजीली अवेलेबल. जो पेस्टिसाइड्स है और केमिकल फर्टिलाइजर्स है, दैट यू हैव टू पे मनी एंड यू हैव टू बाय देम, है ना. सो यहाँ पर इस स्लाइड में हमको ये बताया है कि पहले क्या कंडीशंस थी इंडियन एग्रीकल्चर की, और एडवांसमेंट होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आए. ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी विल द लैंड सिस्टम. नाउ एक क्वेश्चन पूछा था टेक्स्ट बुक में कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में इतने सारे चेंजेस हुए, तो इतने सारे चेंजेस होने के वजह से विल द लैंड सस्टेन. सो व्हाट हैपेंड, विल सी. Green revolution is associated with loss of fertility of soil, continuous use of groundwater over years, and because of this, what happened led to depletion of water table, है ना. अब ग्रीन रिवॉल्यूशन तो हो गया, बहुत सारा क्रॉप भी आ गया, बहुत सारा प्रोडक्शन भी आ गया, बट एवरी कॉइन हैज टू साइड्स. कुछ अच्छा हुआ तो डेफिनेटली जब नेचुरल वे हम नहीं यूज कर रहे थे, हम आर्टिफिशियल वे यूज कर रहे थे टू गेन हायर यील्ड्स, तो ऑब्वियसली उसका क्या होगा, इफेक्ट होगा लैंड पर, है ना. तो फिर उसके बाद में क्या हुआ, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स यूज करने की वजह से हमारी लैंड की फर्टिलिटी कम, है ना. फिर सेकंड क्या हुआ, कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर ओवर द ईयर्स. कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, इरिगेशन ज्यादा होने की वजह से ग्राउंड वाटर बहुत यूज अप हो गया, उसकी वजह से जो वाटर टेबल है, जो वाटर लेवल है, वो क्या हुआ, लो चला गया, है ना. तो उसकी वजह से हमको वाटर क्राइसिस भी आने लगे. ओके, नाउ फिर उसके बाद में this was given about the green revolution and after effects of green revolution, and उसके बाद में क्या हुआ,
Now the fourth point says how land is distributed between the farmers of Palampur. Now पालमपुर के जो farmers है उनके बीच में land कैसे distribute की गई है ये बोला है next point में. Okay, so first is landless. पहले जो कैटेगरी है वो landless लेबर जिनके पास में कोई land नहीं है ना. सेकेंड कैटेगरी वो स्मॉल फार्मर. दिस लैंडलेस जो लोग हैं जिनके पास में लैंड नहीं है दे वर्क एज वर्कर्स इन अदर्स फील्ड है ना. दूसरे लोगों का जो फार्म है फार्म लैंड्स है वहाँ पे वो लोग एज वर्कर्स या डेली वेजेस वर्कर्स काम करते हैं. ओके, नाउ सेकेंड इज स्मॉल फार्मर्स. ओके, स्मॉल फार्मर्स के पास में क्या है स्मॉल प्लॉट्स लेस देन 2 हेक्टेयर. जिनके पास भी 2 हेक्टेयर से कम की और से उनको क्या बोला गया है स्मॉल फार्मर्स. नाउ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. ओके, 2 हेक्टेयर से जिनके पास ज्यादा है उनको बोला है मीडियम और लार्ज फार्मर्स. और लार्ज फार्मर्स किसको बोला है 10 हेक्टेयर से ज्यादा जिनके पास में है उनको बोला है लार्ज फार्मर्स. ओके, सो कुछ नहीं यहाँ पे वही बताया है कि कितने कैटेगरी ऑफ पीपल हो सकते हैं विलेज में. इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि इट इज नॉट कंपल्सरी कि अगर आप किसी विलेज में हो तो एवरीबडी इज ए लार्ज फार्मर. ओके, कोई उसमें लेबरर्स भी रहते हैं, कोई स्मॉल फार्मर्स होते हैं, कोई मीडियम फार्मर्स होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज हु वुड प्रोवाइड द लेबर है ना. अब इनको लेबर कौन प्रोवाइड करेगा है ना. Now this what do the small farmers do? They provide labor to themselves. Okay, small farmers क्या करते हैं suppose स्मॉल फार्मर्स इनको बोला है कि जिनका 2 हेक्टेयर से कम है. स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं सिंस कि उनकी लैंड बहुत कम है एंड दे कैन नॉट अफोर्ड टू हायर पीपल टू वर्क ऑन देयर प्रेमिसेस बिकॉज ऑलरेडी उनका लैंड लो है तो उनका प्रोडक्शन और यील्ड भी लो आएगा तो उनको इतना प्रॉफिट नहीं आएगा. तो व्हाट दे डू वो खुद ही खेती करते हैं. सब फैमिली मेंबर्स मिलके दे डू फार्मिंग ओवर देयर. सो नेक्स्ट इज medium and large farmer. So what medium and large farmer do? They hire laborers to work on their field. है ना. medium and large farmer के पास में उतना होता है they had मतलब 10 हेक्टेयर से ज्यादा होता है या 2 हेक्टेयर से ज्यादा होता है लैंड उनके पास में. सो लैंड ज्यादा होता है तो उनका यील्ड ज्यादा होता है. अच्छा, यील्ड ज्यादा होता है तो दे गेट प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मिलता है तो उनके पास में इतना अमाउंट ऑफ मनी होता है ताकि वो लेबर्स हायर कर सकते है ना. नाउ वेजेस एंड ड्यूरेशन प्रोवाइड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब ये जो लेबरर्स हायर करते हैं लोग इनके वेजेस है जो इनकी सैलरी है और जो ड्यूरेशन है मतलब कितने ड्यूरेशन तक आपको काम मिलेगा वो क्या होता है वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. फाइन, सपोज किसी गांव में कुछ अमाउंट होता है फिक्स्ड एक अमाउंट होता है कितना आपको पर डे मिलेगा. ड्यूरेशन भी फिक्स होता है कि इस ड्यूरेशन में जब फार्मिंग चल रही है फार्मिंग का काम चल रहा है तो इसी ड्यूरेशन में आपको ये मिलेगा काम मिलेगा. फाइन, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल नीडेड फॉर फार्मिंग. अब नाउ व्हेन यू हैव टू डू फार्मिंग तो फार्मिंग करने के लिए समथिंग और अदर कैपिटल मनी एंड हाई यू गोइंग टू नीड यू विल बी नीडिंग. सो ये पैसा कहाँ से आएगा. सो व्हाट स्मॉल फार्मर्स डू. स्मॉल फार्मर्स बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स मनी लेंडर्स और ट्रेडर्स. ओके, सिंस स्मॉल फार्मर्स का यूजुअली ऐसा होता है कि जो भी वो लोग उगाते हैं जो उनका यील्ड रहता है उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने कंजम्पशन के लिए रख लेते हैं और थोड़ा ही पोर्शन वो बेच सकते हैं. सो बेचते हैं तो उस थोड़े पोर्शन में से जो भी उनको प्रॉफिट आता है फिर वो उनको नेक्स्ट फार्मिंग सीजन के लिए उसको सेव करके रखना होता है. सो इन दिस प्रोसेस अगर ऐसा होता है कि दे नीड मनी और दे नीड लोन तो फिर वो कहाँ से बोरो करेंगे वो लार्ज फार्मर्स से बोरो करते हैं या मनी लेंडर से या ट्रेडर से. सो व्हाट द जनरल प्रोसीजर इज कि वो लोग इंटरेस्ट पे फिर उनको पैसा दे देते. Now, medium and large farmers are able to arrange the capital from their saving. लेकिन what happens in the case of medium and large farmers कि they don't need to borrow it from anyone. उनका खुद का ही प्रॉफिट इतना हो जाता है या सेविंग इतना होता है कि they can easily afford कि जो नेक्स्ट फार्मिंग सीजन है उसमें वो लोग अपनी सारी एक्टिविटीज अपने ही सेव्ड मनी से पूरी कर सकते हैं. Fine. Now we are going to the next slide.
Now, so the last slide has 2 points and the 7th point says, इसके पहले वाले स्लाइड पे हम लोगों ने क्या देखा था कि वो जो फार्मर्स है वो उनके लेबरर्स क्या टाइप के होते हैं, उनके बाद में फिर कैपिटल उनको जो फार्मिंग के लिए नीडेड है वो कहाँ से आता है ना। उसके बाद में कि फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है और लैंड सिस्टम कैसे होगी। नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू सी कि सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स कैसे होता है ना। मतलब जो फार्म प्रोडक्ट्स निकलते हैं फाइनली उसका सेलिंग कैसे होता है, वो सेल कैसे करते हैं। सो स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं कि एज आई टोल्ड यू कि दे कीप लिटिल सरप्लस मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है एंड कीप सब्सटेंशियल शेयर फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। ओके, सो स्मॉल फार्मर्स का यूजुअली ऐसा होता है, सपोज इफ दे आर ग्रोइंग राइस और दे आर ग्रोइंग व्हीट, तो ऑब्वियसली अगर वो राइस और व्हीट मार्केट में से खरीदेंगे तो उनको एक्स्ट्रा ये पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसमें सारे चार्जेस ऐड हो जाते हैं, वो रिटेल पेड हो जाता है। सो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो जो अमाउंट उनको जितना अमाउंट उनको घर के लिए कंजम्पशन के लिए रिक्वायर्ड होता है उतना दे कीप एंड रेस्ट ऑफ इट दे सेल। ओके, now second is medium and large farmers apply the produce to the market, and probably what medium and large farmers do, maybe they keep, maybe they do not keep, maybe they sell the entire produce to the market. Now जो पालमपुर विलेज के बारे में we were saying, तो वहाँ पर the last point हमें बताया है कि what are the non farming activities that are carried down in पालमपुर विलेज। सो द फर्स्ट इज डेयरी, है ना। डेयरी इज जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स है, जो भी चीजें है डेयरी की, वो उसका सेलिंग मतलब डेयरी। स्मॉल स्केल एंड मैन्युफैक्चरिंग, जो भी स्मॉल स्केल फैक्ट्रीज है या इंडस्ट्रीज है जो छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, जो भी बहुत सारे विलेजेस में ऐसा होता है। सपोज बंगाल के साइड के आप कोई विलेजेस में जाओगे तो वहाँ पे jute is a raw material which is readily available. So ऐसे बहुत सारे villages में small scale manufacturing units होते हैं जो jute की छोटी छोटी चीजें बनाते हैं, है ना। थर्ड इज शॉपकीपर। शॉपकीपर एज इन शॉपकीपर्स जो सारे विलेजेस में होते हैं उनका इनकम यहाँ से जनरेट होता है। मतलब मेजरली ये इस सेक्शन में व्हाट दे वर फोकसिंग ऑन इज कि पालमपुर की जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर के अलावा कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करती है। सो दैट इज डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, शॉपकीपर एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, so guys, here we are ending the first chapter. I hope you liked it, and whatever your comments and suggestions are, please comment in the comment box, and please like, share and subscribe. I'll be soon coming up with the next chapter. Till then, bye bye. Thank you.